Hello everyone, myself Drishti Goyal and I welcome you to yet another session of SSB Crack Talks. So as we know that the determination to succeed is everything, and to make this statement right once again, we are having one such young chap with us who got recommended in his very first attempt of NDA but unfortunately got medically unfit. In his second attempt, he got conference out, and then also he didn't lose his hope, he didn't lose his determination, worked hard, appeared for the AFCAT returns in his fifth semester, and got recommended for AFCAT in his very first attempt, and is now medically fit and going to join the prestigious Air Force Academy Dundigal very soon. So let us welcome Mr. Akhilesh Goswami, who is going to share his experience of AFSB for AFCAT entry as well as NDA recommendation for his first attempt, and compilation of both will be very much helpful for your upcoming attempts. So let us welcome him. And hi Akhilesh, how are you? Hi, ma'am. Good evening. I'm good. How are you? I'm also very good. First of all, many congratulations for you getting recommended for the prestigious Indian Air Force. How are you Thank you feeling? so Thank you so much, ma'am. The feeling is very nice. Feels good. Okay. Yes, Please ma'am. tell us something about yourself. Jai Hind, everyone. My name is Akhilesh Goswami. I belong to Haldwani, which is a small city in the Nainital district of Uttarakhand. I am a Kumauni. I've done my schooling from Sainik School, Ghodakhal. I joined it in sixth class and I passed out in the year 2020. And currently, I'm pursuing my graduation from Delhi College of Arts and Commerce, University of Delhi. I'm pursuing BA program in history and political science. So this was my third attempt in SSB. In the first attempt, I got recommended for NDA 145th course, and my merit position in that course was 121, and I got medically out in that attempt. And my next attempt was for the course NDA 146. I got conference out in that. And finally, in my third attempt, it was for AFCAT 2 to 2022. I got recommended from 1A for Selection Board, Dehradun. Okay, so as you told that in your first attempt you were recommended, then you get conference out, and after that you get recommended again, right? तो वो जो बीच में conference out वाला phase था, how did you took it? मतलब जो बीच में एकदम से failure आया after getting success, है ना? So how was it the phase, and how did you keep yourself motivated at that time to continue preparing and getting recommended for this graduate entry? Yes, ma'am. So, ma'am, in my first attempt, I got recommended from 17 SSB Bangalore. So it was a very good, it was a very good experience, and I was able to score 440 marks out of 900 in my SSB. So it for people who do not know, if you're scoring this much, that means somewhere or the other you are recommended by all the three SSRs. So my confidence level was very high कि हाँ भाई अगर तीनों से मैं recommend हूँ तो हाँ मतलब ठीक है, I'm good at this. तो फिर उसके बाद then I got in April 2021 I attempted for NDA 146 course, and then there I got conference out from 22 SSB Bhopal. So and I was not ready to accept it in the beginning of like for the first few days, because I knew where it was wrong, where I was wrong, going wrong. Like it was all my overconfidence कि हाँ भाई अब इतने नंबर ले आया था, इतनी अच्छी रैंक आ गई थी एनडीए में. Although I got medically out, but then SSB, so I'll clear. So it's not in your hands, and then overconfident rahoge, so it will never be in your favor. So I accepted it, and then so it was good. But then every night when I used to sleep, after getting recommended after getting medically out in my first attempt, every night when I used to sleep, go back to my bed, दिमाग में यही thought आता था कि यार SSB तो शायद clear कर लूंगा, लेकिन क्या medical it'll be a tough call for me. It'll be a tough thing for me. But then now for my third attempt, I got recommended. I worked hard again. Fifth semester, I appeared for FCAT, and then I cleared it. Cleared my SSB, cleared my medicals as well, and then hoping to join the academy in the coming July 2023. Yeah, definitely will get merit in this thing. Yes, ओके सो नाउ विल स्टार्ट विद द रिटर्न्स पार्ट, है ना? पहले तो आपने एनडीए भी क्लियर किया, आपने एफकेट भी क्लियर किया, सो यू माइट हैव अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स द रिटन एग्जामिनेशन. So what was that, and what would be your suggestion for those who will be appearing for the first attempt of their returns, be it ND or AFCAT? First of all, I'll be telling about the NDA because there are many young boys who are full of josh and enthusiasm about NDA. So NDA
it's about written comprises of 900 marks and SSB also 900 marks. It makes total to 1800 marks. So NDA, there are two exams. One is for GAT and one is for mathematics. So mathematics, you need to clear the bare minimum cutoff, which is generally, I think, between 90 to 100 marks. It used to be like that in my times. I don't know what's the status now, but then it's that. And then once you clear that cutoff, you can score pretty much in GAT. So I was moderately okay in maths. So I used to practice this maths, 11, 12th ki NCERT used to do again and again. And then I used to get those OMR sheets. And then I used to practice it like उसी टाइम पे मैं प्रैक्टिस करता था जिस टाइम पे पेपर होने वाला है रोज के रोज. तो फिर मैं गोला भरना और सब कुछ वैसे ही पेपर करना, टाइम लगा के बैठना, उस प्रेशर में बैठना. तो मैथ्स इज ऑल अबाउट टेकिंग प्रेशर, एंड देन आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका मैथ्स उतना अच्छा होगा. प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स एंड कैलकुलस, ये सब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं एनडीए मैथ्स में जो आपको करने ही करने चाहिए और जिनके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. तो फिर ये कुछ पार्ट अगर आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, आप सब कुछ पढ़ने बैठोगे जो इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ दोगे. तो एनडीए मैथ्स में दिस इज इंपॉर्टेंट. अबाउट जीएटी, तो जीएटी में एनडीए में इट्स लाइक 600 मार्क्स का जीएटी है. अगर 150 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, तो उसमें इंग्लिश के ही 50 क्वेश्चन अराउंड आ जाते हैं. बाकी 50 क्वेश्चन साइंस के और अगले 50 फॉर दिस द एसएसटी पार्ट व्हिच आई कॉल. तो इंग्लिश ही आपका अगर 200 नंबर का आ रहा है, आप इंग्लिश जितने अच्छे से करोगे उतना अच्छा आपका स्कोर रहेगा. इंग्लिश क्योंकि बहुत इजी टू स्कोर होता है. आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो, आप नीतू मैम या एसपी बख्शी सर की किताबें आती हैं, उन किताबों से प्रैक्टिस करो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ. सब इट्स ऑल कि आप कितना ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना ज्यादा उसके रूल्स वगैरह सब पढ़ रहे हो, तो आपका उतना अच्छा स्कोर आएगा. आप बस रीडिंग को अपनी हैबिट में रखो. और उसके बाद आपका जीएटी पार्ट में आई वाज अ पीसीएमबी स्टूडेंट इन क्लास 12th. तो माय साइंस वाज प्रीटी गुड. सो आई न्यू कि हाँ, अगर मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मैं साइंस में अगर अपनी ज्यादा मेहनत लगाऊंगा, बशर्ते अगर मैं एसएसटी पार्ट में ज्यादा लगाऊं तो मेरे को ज्यादा यील्ड मिलेगा. तो मैं साइंस पोर्शन में अपना पूरी मेहनत लगाता था और साइंस में 50 में से मैं 40-45 क्वेश्चन आराम से कर लेता था उसमें भी. जीएटी पोर्शन में, वो उसमें एसएसटी पोर्शन में इट वाज नॉट दैट गुड माइंड पर्सनली स्पीकिंग. तो मैं सिर्फ करंट अफेयर्स करके जाता था उसमें, और जो भी करके जाता था वो पक्का फंस जाते थे. यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है. आई टुक योर गाइडेंस फ्रॉम एसएसबी क्रैक. ऑल दी करंट अफेयर पार्ट that was almost covered from there and nothing was out of that. So NDA में तो it was like that. Then FCAT is a very easy paper. I should say everybody knows, people here must have appeared for it. So it's like 100 questions, 300 marks, 3 marks for each question, and there are sections: math section, reasoning section, English section and GAT section. तो बहुत इजी सेक्शंस रहते हैं. आपकी रीजनिंग यहाँ पे आ जाती है तो आपका स्कोर बहुत अच्छा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं. मैथ्स बहुत बेसिक अरिथमेटिक, एनडीए लेवल की नहीं, एकदम बेसिक अरिथमेटिक मैथ्स. आप बस प्रैक्टिस करते रहो, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, वही सेम किताबों से, और फिर आप फ्लो में रहो. ऑनलाइन किसी से गाइडेंस लेके ऑनलाइन आप टेस्ट देते रहो, क्योंकि आप ऑफलाइन एग्जाम देते हो, आप ऑनलाइन एग्जाम देते हो, काफी अंतर है. क्योंकि आप ऑनलाइन बैठ रहे हो, आपको स्क्रीन के सामने बैठना है, तो आपको उस हिसाब से प्रैक्टिस करनी चाहिए. वहां पे प्रैक्टिस तो अपना स्कोर एनालाइज करो and then go for FCAT. FCAT is a very easy exam, I must say. NDA and other exams are a bit tricky and tough, I must say, but then and FCAT is easy. So like that. आपकी बात सुन के जो नई लिपि लिखने वाले थे ना, वो भी अभी जाके एग्जाम लिखेंगे, मैं बता रही हूँ आपको. है ना, वेरी वेल एक्सप्लेन यार. आपने पेपर का पूरा पैटर्न भी कवर कर दिया. So it's very easy to crack the written exams if you have the right strategy and the right mindset, right? Plus the guidance. Okay, so like you said, you were enrolled to SSB crack exams for your written examination. So what was the exact thing which helped you in the writtens in the SSB crack module? In the SSB crack module is very systematically arranged. Like there are classes for different sections, different subjects, and then the faculty is so like they are well educated, and then they have so much of experience that the student, they are like it is a very interactive and lively class. So I like that माहौल there in SSB crack कि हाँ भाई, अगर मेरे को दोबारा लेक्चर देखने की जरूरत पड़ती नहीं थी कभी. It's always
एक ही बार में आई वन शॉट क्लियर, इट वाज लाइक दैट. सो इट वाज वेरी इजी फॉर मी. एसएसबी क्रैक के साथ जुड़ने के बाद इट वाज लाइक अ केक वॉक फॉर मी. तो फिर आई थिंक एंड द सेम रिव्यूज वर देयर फ्रॉम माय फ्रेंड्स आल्सो, सो इट हेल्प्ड मी अ लॉट इन माय रिटन्स, आई मस्ट से. ओके, सो नाउ यू हैव क्लियर्ड द रिटर्न्स, है ना. अभी एसएसबी की बात करते. रिटर्न्स क्लियर होने के बाद काफियों को तो पता ही नहीं कि एसएसबी है क्या, है ना. तो एसएसबी में कितने स्टेजेस हैं, क्या प्रोसेस है. उसके बाद भी बीइंग अ एनडीए चैप, है ना, एट द टाइम ऑफ दैट लाइक योर फर्स्ट अटेम्प्ट यू क्लियर्ड इट. सो व्हाट वाज योर प्रिपरेशन एट दैट टाइम दैट यू क्रैक्ड इट इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट? So, ma'am, as I already told you, I was from Sainik School. So, while I joined it in 2013, so Sainik School is basically like a mini Fauj. Okay, it's everything is there like NDA only. Not that tough, of course, but then ठीक है, एक माहौल मिल जाता है आपको. आप एक छोटी उम्र से आप ऑफिसर्स को देखने लगते हो. आपके अराउंड बैटल टैंक्स लगे हुए हैं, एयरक्राफ्ट्स लगे हुए हैं कैंपस में ही, वही फॉलन सायरन फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग इज जस्ट सेम. तो फिर आपको वो माहौल मिल जाता है. उसके बाद यू गेट टू हैव दोज लीडरशिप वाले रोल्स की, हाँ अपॉइंटमेंट बन गए या फिर जूनियर्स को गाइड कर दिया, उनको कुछ करवा दिया ऐसे करके. तो फिर आपकी दैट लीडरशिप स्किल्स, दोज लीडरशिप स्किल्स दो दे कीप ग्रूमिंग. तो फिर वहीं से ही माय प्रिपरेशन स्टार्टेड. एंड आई विल से कि दोज आर लुकिंग फॉरवर्ड टू जॉइन द फोर्सेस एंड देन जो सोच रहे हैं कि अभी एसएसबी है, 1 या 2 मंथ में इट विल नॉट हेल्प. इट्स योर लाइफ, इट्स अबाउट योर लाइफ. तो आप पहले से ही जैसी हैबिट्स, जैसे सब कुछ चीजें आप इनकलकेट करते हो खुद में, वो चीजें आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेंगी और एसएसबी में वही चीजें रिफ्लेक्ट होंगी. तो फिर मैं जब मेरा व्हेन आई वाज इन 12th, सो आई वाज देयर इन मेनी एक्टिविटीज. आई वाज द स्कूल कैप्टन ऑफ आल्सो ऑफ माय बैच. तो फिर मैं द फर्स्ट अटेम्प्ट व्हिच वाज देयर फॉर एनडीए 144 कोर्स, आई कुडंट क्लियर दैट रिटन. सो आई वाज टोटली डिजेक्टेड एंड देन मतलब ऐसा हो गया था कि यार स्कूल कैप्टन का नहीं हुआ. So it was like a kind of shame for me कि हाँ यार इतनी पुरानी लेगेसी चलती आ रही है and I couldn't continue it. तो फिर but then फिर उसके बाद लॉकडाउन आया, 145 के लिए पढ़ा, cleared SSB also. So failures keep coming but then you have to keep going. So it's like that. So Okay. yes ma'am. So actually your journey is very inspiring and I am getting very much interesting in knowing it in deep actually. Okay, so I'll start with the screening part. है ना. अभी you went 3 times for the SSBs and in all the 3 times you were screened in. तो ये फुल प्रूफ क्या स्ट्रैटेजी है आपकी जो स्क्रीनिंग का, आप एक ऐसा कोई रामबाण है आपके पास तो आप बताओ हमारे स्टूडेंट्स के लिए. स्क्रीनिंग का रामबाण, it's like I was never afraid of getting screened out. I never, because I used to practice OIR very very sincerely. I used to practice because OIR आपको ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग एकदम अच्छे से हर एक पार्ट को अच्छे से कवर करना चाहिए, हर एक चीज को अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए. कुछ दिन का कुछ टाइम फिक्स रखो कि हाँ मैं OIR प्रैक्टिस करूंगा ही करूंगा. तो मेरा एक रूटीन था कि हाँ भाई मैं OIR रोज कुछ हो जाए मेरे को OIR प्रैक्टिस करनी ही करनी है. और फिर उसके बाद OIR मेरा इस बार एफकैट में इतना अच्छा हुआ है कि मेरे 100 क्वेश्चंस थे शायद. तो आई डोंट रिमेम्बर कि अगर मेरा एक भी क्वेश्चन गलत हुआ हो. इट वाज लाइक 100 आउट ऑफ 100, आई थिंक सो. सो इतना अच्छा हुआ क्योंकि इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस. आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो एंड आई हैव आल्सो, आई डोंट नो इफ द I don't know how many of the aspirants know here this thing कि if your OIR is between 1, 2 and 3, then अगर आपका नरेशन कुछ डाउटफुल सा भी रहता है या फिर आप अगर ऑफ कोर्स अगर आपका परसेप्शन ही बिल्कुल अलग है, दैट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हे वायर बिल्कुल कुछ और ही चले गए, लेकिन अगर मिलता जुलता है, आप सही बोल रहे हो, थोड़ा सा भी अगर 3 एसएसएस में से 2 ने भी आपको नो कर दिया और एक ने अगर डाउटफुल भी दे दिया है और आपका OIR 1, 2 और 3 के बीच में है, तो आप स्क्रीन हो ही जाते हो. लोगों का साथ इसलिए होता है क्योंकि ये जाते हैं प्री कंसीव नोशन लेके कि हाँ भाई मैंने वो उस ऐप से इतनी सारी क्वेश्चंस, वो इतने सारे पीपीटीटी प्रैक्टिस किए थे, अब ये तो वैसा ही आ गया, मैं वैसे ही लिख के आ जाता हूँ. या फिर मैं इसको जबरदस्ती किसी करंट टॉपिक से जोड़ के लिख देता हूँ कि फार्म्स लॉ आया है, मैं ये लोग इकट्ठा है तो मैं लिख देता हूँ कि ये फार्म्स लॉ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये है वो है. डोंट डू दैट. इट्स अ ब्लंडर. ठीक है, कुछ भी हो जाए, जो आपको दिख रहा है ऑन द स्पॉट वहां पे फिजिकली मेंटली प्रेजेंट रहो, ओरिजिनलिटी रखो अपनी, और जो भी पिक्चर आ रही है उसको लिखो और बिंदास वहां पे सबकी बारी आती है, आप खड़े हो कॉन्फिडेंटली सबके साथ आई कांटेक्ट करके, सबके साथ एकदम जोश में आवाज ऊंची रख के अच्छे से कॉन्फिडेंटली सबके साथ बोलो. एंड देन वो आपके मुंह खोलते से ही समझ जाते हैं यार कि हाँ भाई ये बंदे में दम है,
या ये बंदे में दम नहीं है, ठीक है। आप मुंह खोलोगे वहां पता लग जाए कि हाँ भाई ये बंदा सही बोल रहा है। वो शायद आपकी स्टोरी भी ना सुने, कोई आपका प्लॉट थोड़ा सुनेंगे स्टार्टिंग में कि हाँ भाई ये कितना रेलिवेंट बोल रहा है, कितना इरेलीवेंट बोल रहा है। और फिर आप एंड फॉर द जीडी पार्ट, यू वोंट बिलीव इट, बट देन मैं आज तक कभी जीडी में पार्टिसिपेट नहीं किया। 3 स्क्रीन हो गए, मैंने जीडी में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। बस मैं अपना एक पॉइंट डाल देता था बीच में, क्योंकि वहां पे ऐसा भेड़चाल चलती है कि यार समझ ही नहीं आता क्या मैं बोलूं या ना बोलूं, कैसे बोलूं। वहां पे इतना हल्ला हो रहा है, यहाँ से कोई बोल रहा है, वहां से कोई बोल रहा है, मतलब तो मैं आई चूज टू बी साइलेंट। और फिर वहां पे ये कुछ बोल रहा है, ये कुछ बोल रहा है, बीच में अपना पॉइंट डाल देता हूँ, एंड देन आई लिसन टू एवरीवन केयरफुली। This never went against me, and I always got screened in. So this was my strategy. OIR, wholeheartedly, ekdam sincerely OIR you should practice. And narration ke liye just take a story, write something about it, open your camera. Everybody of us is available with phones and everything. Open your camera, record yourself like imagine that situation कि हाँ यू आर सिटिंग देयर एंड पीपीटी एंड ये चल रहा है, नरेशन चल रहा है, आप आपके असिस्टेंट सामने बैठे हैं, वो प्रेशर लो और फिर पूरा नरेट करो इधर उधर देख के। और फिर उसके बाद सी योरसेल्फ, और उसके बाद देखो कि हाँ मैं इतना कॉन्फिडेंट लग रहा हूँ, मैं थोड़ा यहाँ पे मेरे हाथ कांप रहे हैं, आपको वीडियो देख के पता लगता है कि हाँ आपके हाथ कांप रहे हैं या कुछ कांप रहे हैं। उसके बाद वहां पे यू विल बी फाइन, एंड देन स्क्रीन इज अ केक वॉक। ये सब चीजें फॉलो की तो Actually, this is a very good strategy of recording yourself, है ना? Even we are suggesting this to our students to record themselves, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आपके पास कंटेंट है, आप कभी भी रिव्यू कर सकते हो खुद को, आप देख सकते हो कि फर्स्ट वीडियो और लास्ट वीडियो में आपका कितना इंप्रूवमेंट है, वो स्केल अब जा भी रहा है क्या नहीं जा रहा है ना? बल्कि हम ग्रुप में जब प्रैक्टिस कर रहे हैं वी कैन नॉट एनालाइज कि कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, बट थ्रू दिस मेथड यू कैन एनालाइज। सो या ट्रू ट्रू। पीपल आउट देयर कैन डेफिनेटली गो विद दिस वन। तो बहुत अच्छे से आपने कवर किया। Okay, can you tell us about the recent picture which you got and what type of story did you make? So in my AFCAT this SSB उसमें PPDT में I got the story. There was a person, he was semi formals types कुछ पहना हुआ था, and he was sitting like this on the sofa. Okay. So I perceived it as that he this guy I could connect him with me, that he's from Delhi University and he is into so much of sports and extracurricular activities, and then his semester end exams are coming. तो फिर वो ना थोड़ा उस तरफ था, तो वो यहाँ पे नहीं प्रिपेयर कर गया ना, उसे अब होल हार्टेडली पढ़ाई की तरफ ही देखना है। तो वो पढ़ता रहता है, अपना शेड्यूल बनाता है, सब कुछ करता है, और फिर बीच बीच में वो रेस्ट लेता है, नैप्स लेता है, और उस बीच में वो सोचता है कि मैंने जो अभी तक मैंने पढ़ा क्या वो मुझे रिटेन हुआ, और मैं आगे क्या पढ़ने वाला हूँ, और मेरे अब क्या क्या करूंगा मैं, कैसे कैसे सब चीज करनी है मुझे। और फिर बाद में उसके एग्जाम्स बहुत अच्छे होते हैं, और फिर he becomes very much satisfied with this, participating everywhere and then doing this and that. And there were people in my group जो ये भी स्टोरी बना रहे थे कि he's a person and he's suffering from AIDS एंड उसको ये हो गया है, उसको ये हो गया है, उसको अस्थमा हो गया है, ये हो गया, और वो परेशान है, उसके बच्चे मर गए हैं, कुछ है। भाई क्यों मारने हैं किसी के बच्चे? नॉट रिक्वायर्ड। क्यों आपकी Exactly. ऐसे कोई तभी बैठता है जैसे बच्चे मर गए होते हैं। तो ये आप इतने नेगेटिव क्यों जा रहे हो? एंड देन फॉर्चुनेटली माय स्टोरी वाज चोजन एज द ग्रुप स्टोरी आल्सो। आई वाज एबल टू कन्विंस एवरीबॉडी कि हाँ भाई ये वही है। तो कहीं ना कहीं दैट आल्सो मैटर्स। तो फिर इट वाज लाइक दैट इन माय पीपीटी। Yeah, actually, again, the very important point you highlighted, don't perceive when it is not given, है ना, negative. इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं है ना, अभी धुआं देख के आग बनाओगे तो यू आर लाइक एट फॉल्ट, समझ रहे हो? कल को फिर दिखेगा कि हाँ छोटी सी प्रॉब्लम का पहाड़ बनाने में यू वॉन्ट टेक टाइम। सो इट्स बेटर टू परसीव एज इट इज गिवन, जितना डिमिनिश करोगे उतना बेटर है नेगेटिव सिचुएशंस को स्पेशली। बट ऐसा भी नहीं है कि जबरदस्ती का पॉजिटिव बनाना, तो फिर वो थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करोगे, इट विल बी हेल्पफुल, राइट? Okay. Abhi, I'll be coming up with the next question. You have been to SSB for NDA, that was the like inter-level entry, and you have been to graduate level entry. तो आपने कुछ difference find किया क्या दोनों entries में? Also, you Sure. had both the entries different for the services, like one for army and one for air force. तो वहां पे भी कुछ difference लगा क्या आपको? तो वो दोनों चीजें एक बार थोड़ा highlight। डिफरेंस है, काफी ज्यादा है। मैंने ये फील किया कि एनडीए में व्हेन यू गो, 12th के लड़के या तो जो पास आउट होने वाले हैं स्कूल से, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है,
या फिर 12th जस्ट पास किए हुए लड़के जो शायद फर्स्ट ईयर में हो गए हैं, ज्यादातर बच्चे ड्रॉप ही ले लेते हैं, वो होते हैं। तो व्हेन यू आर फ्रेशली आउट ऑफ स्कूल, यू यू आर लाइक नॉट मच इनटू, आपने ज्यादा दुनिया नहीं देखी होती उतनी ज्यादा जितना एक ग्रेजुएट ने देखी होती है। ऑफ कोर्स उसका एग्जैक्टली। एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, उससे शायद काम भी करके आया होगा कहीं से, बीटेक वीटेक करके कॉर्पोरेट में काम करता होगा। तो फिर वो उसका एक नॉलेज का बेस और आपके एक नॉलेज का बेस अलग होगा। तो एनडीए में व्हेन आई एक्सपीरियंस द जेडीज एंड ऑल, एक बहुत उतना उतनी मतलब बोलते हैं कुछ लोग, बट देन उतनी डीप नॉलेज के साथ, उतने फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं बोलता कोई, जितना मैं ग्रेजुएट एंट्री में देखा। मैं तो आई आई वॉज द यंगेस्ट ऑफ ऑल दी देयर। तो वहां पे तो एज नंबर्स, एज डेट ऑफ बर्थ से टेस्ट नंबर मिलता है एयरफोर्स में, तो मैं तो सबसे आगे था टेस्ट नंबर 1 अपने ग्रुप का। और बाकी सारे मैंने देखा कोई 21 एसएसबी देके भी आ रखा है, कोई किसी का 28वां अटेम्प्ट, 28th अटेम्प्ट। इतना so aged guy, he was working in corporates like for a very long time now. तो मैंने कहा यार इनके साथ कंपटीशन, बट देन इट शुड नॉट डिमोरलाइज, बिकॉज आपका होना होगा तो होएगा ही, उनके होने से कोई मतलब नहीं है वहां पे। तो फिर वहां पे डिस्कशन जो एफकैट में चलता है और अदर ग्रेजुएट एंट्रीज में चलता है, वो थोड़ा नॉलेज बेस में ज्यादा चलता है, क्योंकि वहां पे एवरीबडी इज इनटू न्यूज़पेपर्स, मतलब बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा नॉलेजेबल कंटेंट होता है वहां पे। और फिर डिस्कशन बहुत हेल्प, मतलब बहुत ही ज्यादा वो चलता है मैच्योरली एंड नॉलेजेबल। मैंने ऐसा भी देखा है मेरे ग्रुप डिस्कशन में, देवर पीपल सिटिंग, एंड देन एक बहुत बहुत सीनियर था कोई, उसका कुछ 20+ अटेम्प्ट हो गया था, एंड देन उसके बगल में चेस्ट नंबर 38 बैठा था, सॉरी 42 बैठा था, 41 इधर बैठा था, आई वाज सिटिंग देयर। तो फिर वो बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है कि हाँ आई थिंक जेंटलमैन इन माय व्यू दिस दैट। उसने उसको उस गुस्सा आ गया, उसने ऐसे मार दिया चेस्ट पे, करा चेस्ट नंबर 39 लेट मी स्पीक। तो ऐसे भी लोग आते हैं, ऐसे भी लोग आते हैं। तो इट्स लाइक दैट। बट मैंने ऑल इन ऑल जो देखा, वो एनडीए एसएसबी में थोड़ा लड़के से रहते हैं, तो उसमें ठीक है, उतना ज्यादा नहीं रहता, बट वो इधर लेवल पे ऑफ मैच्योरिटी इज डिफरेंट, राइट? करेक्ट करेक्ट। ऑल्सो एनडीए एंट्री में सीट्स ज्यादा होती हैं, एवरीबडी नोस। एग्जैक्टली। ग्रेजुएट एंट्री में सीट्स कम होती हैं। और आप एनडीए में जाओगे, एनडीए में आप 3 साल एनडीए रहोगे, 1 साल आप सीनियर एकेडमी में रहोगे। आपको अगर आप थोड़े से ज्यादा रॉ हो तब भी उनको चलेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि रगड़ा झगड़ा देख के वो ट्रेनिंग में आपको चेंज कर देंगे। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट होके आ रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि हाँ भाई, इसका कहीं ना कहीं जो माइंडसेट बन चुका है, वो 1 साल की ट्रेनिंग में वो चेंज करना मुश्किल हो सकता है। तो उन्हें एक ज्यादा प्रिपेयर्ड, ज्यादा अच्छा, जो जिस पे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, दे आर सर्चिंग फॉर दैट पर्सन। तो फिर ऐसे आई फाउंड, एंड देन आर्मी और एयरफोर्स, यू आस्क्ड, आर्मी एंड एयरफोर्स में मैंने बहुत डिफरेंस देखा। मैंने ये देखा कि जो लेक्चरेट और लेक्चरेट वगैरह के टॉपिक्स हैं आर्मी में, वो ज्यादातर नॉलेज बेस्ड हैं, जैसे कि सार्क बिम्स्टेक पे आ गया, या फिर साउथ चाइना सी, ये सब नॉलेज बेस्ड टॉपिक्स ज्यादा हैं। और फिर चौथा टॉपिक वही रहता है, माय फेवरेट स्पोर्ट, या फिर डेटिंग एप्स, या कुछ ऐसा। बट देन जो ग्रेजुएट मैंने एफकैट में देखा, एफकैट में कोई भी ऐसे किसी के पास ये टॉपिक नहीं आया कुछ भी, कि सार्क सूक या फिर इंडो चाइना रिलेशंस, इंडो पाकिस्तान रिलेशन, कुछ नहीं। वहां पे मेरे को क्या मिल रहा है? अफोर्डेबल हाउसिंग। तो क्या, व्हाट वुड यू स्पीक ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग? कुछ, बट देन यू हैव टू स्पीक समथिंग। सो मैंने किसी का नहीं देखा। तो ये चीज मैंने देखी एयरफोर्स और आर्मी में, कि कहीं ना कहीं वो जीडी के टॉप, वो लेक्चरेट के टॉपिक्स थोड़े से वैसे रहते हैं। बट दैट इज ऑफ कोर्स टू चैलेंज यू, हाउ वुड यू स्पीक? एवरीबडी नोज अबाउट बिम्स्टेक, नोबडी नोज कि अदर थिंग्स कैसे बोलनी है। उसके बाद मैंने ये भी देखा कि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स वर डिफरेंट। आर्मी में देयर इज नो वर्टिकल रोप, एंड one more jumping into the rope and coming, I don't know, monkey crawl or something it is there in army also, but then in air force it is higher. Tiger's dump, I guess you're. Tiger's leap, yeah, something like that. And then air force में it's higher, army में it's 10th number, 10 point का रहता है वो सबसे highest, वो थोड़ा low रहता है, air force में high रहता है। तो I don't think individual obstacles ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि तब तक आपका रिजल्ट ऑलमोस्ट बन चुका होता है। तो it's like that, air force, army and तो एसएसबी थोड़ा अलग थोड़ा कैसे। डिफरेंस है ना, कि थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है। और एक वो हाइट वाला फैक्टर तो है कि एयरफोर्स में ऑब्स्टेकल आर जनरली एट अ सर्टेन हाइट व्हिच आर्मी डोंट हैव, राइट? वो तो मतलब मेजरली एक है ही चेंज। ओके, अभी थोड़ा सा बात करते हैं आपके स्टेज 2 के बारे में, राइट? अभी आप स्क्रीनिंग हो गए, पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो गया, थका दिया आपको, है ना? अभी आर्मी एयरफोर्स वाले तो सेम डे पे स्क्रीनिंग करा ले रहे। हाँ करेक्ट, दिस थिंग मोर, कि शाम को ही साइक टेस्ट कर देते हैं वो लोग। हाँ हाँ, सॉरी, साइक टेस्ट, राइट?
तो फिर how was it like after getting like up at 4 a.m. in the morning and then in the evening at 8-9 आप अपनी psych test लिख रहे हो? So how was the experience and how did you prepare for the psych? साइक के लिए आई वुड से पहले मैं आई टेल यू द एक्सपीरियंस. सो सुबह के 4 बजे उठ रहते हैं, ऑफ कोर्स स्क्रीनिंग है, और स्क्रीनिंग हुए, फिर इधर उधर लंच किया, एंड देन दे टेल यू कि डॉक्यूमेंट्स भरो और जाके सो एवरीबडी हैज टू टेक कंपल्सरी स्लीप फॉर 2 hours. So make sure that you take that compulsory sleep and not go here and there, because that will go against you. तो फिर उसके बाद 5 o'clock अगेन वी आर कॉल्ड एट द अर्जुन सिंह ऑडिटोरियम, आई गेस देहरादून वाला. वहां पे हमें बैठाया सबको, एंड देन वहां पे द साइकोलॉजिस्ट कम्स एंड देन ही डिस्ट्रीब्यूट्स द DIPR शीट्स, एंड देन वहां पे फिर then it starts. So you are somewhere or the other exhausted, but then you are under pressure also कि आज साइक टेस्ट अच्छा करना है, ये है वो है. उसके बाद it starts with TAT of course. So thematic apperception में it's like जो भी पिक्चर आप देख रहे हो वही PPTT की तरह कि आप कुछ और ही मत बनाओ उसके लिए. आपको जो दिख रहा है आप अपनी लाइफ से उसको जैसे कनेक्ट कर पा रहे हो, आप अपने PIQ से जितना ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो उससे, आप उसको उतने अच्छे से करो. बिकॉज एक साइकोलॉजिस्ट के पास भी आपका एक PIQ है, तो he knows about your life, how you've been, आपका पूरा पट्टा चिट्टा पता है उन्हें. तो फिर आप अपनी लाइफ, क्योंकि आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं आप उसको अपने आप से ज्यादा रिलेट कर पाओगे ना. तो आप टैट को अपने एक्सपीरियंसेस से, जैसे आपकी अच्छी स्टोरीज, बहुत ज्यादा सुपरफिशियल या इस टाइप की स्टोरीज, नो, नॉट एक्सेप्टेबल देयर. आप जैसे आप जितना ओरिजिनल रह सकते हो, सिंपल से बनाओ यार, सिंपल से ही बना लो, बट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से रिलेटेड हो. या मैं तो यही करता हूँ, माय अप्रोच कि मैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ बनाऊं. और फिर जो 12वीं स्टोरी है उसको मेरे पास एक 2-3 स्टोरियां दिमाग में रहती हैं कि हाँ भाई जो उस टाइम पे क्लिक कर जाएगी, आई बी गोइंग फॉर दैट. तो फिर आई कनेक्टेड टू सम ऑफ माय एक्सपीरियंसेस कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, तो उस टाइम पे मैं कैसे ओवरकम किया इसे. some good stories, something like that only. So my 12th story is something like that. And then the VAT part. So try doing all 60 VATs. ठीक है, 60 के 60 वैट करना इज इम्पोर्टेंट. मेरे को पता है ये थोड़ा टफ रहता है स्टार्टिंग में, बट व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग यू गेट यूज्ड टू दैट प्रेशर एंड टाइम फ्रेम में कि भाई इतने टाइम फ्रेम में करना है, 15 सेकंड में टक टक करना है. तो फिर मेरे NDA वाली SSB में आई हैड मेड अ बिग मिस्टेक. I don't want anybody of the aspirants to do that, so I'd like to share about it. क्या हुआ था कि जिसमें मैं रिकमेंड हो गया था, उसमें ऐसा हुआ कि मैंने साइट में पहले एक पन्ने में 20 रहते हैं, 20 और तीसरे में 20. तो मैंने पहले वाले में तो 20 किया, दूसरे वाले में जब मैं 21 कर रहा था तो मैंने 22वां 21 में कर दिया, क्योंकि मैंने घंटी नहीं सुनी. 23वां 22 में हो गया और 40वां 39 में हो गया, और मैं 40 के लिए वेट कर रहा हूँ, वहां सब पन्ने पलट रहे हैं. तो वहां वो थोड़ा एब्सेंस ऑफ माइंड दिखाता है, पता नहीं. एंड वो बहुत लोगों के साथ होता है. यू वोंट बिलीव, इवन आई हैव सीन इन माय ओन अटेम्प्ट पीपल डूइंग दिस मिस्टेक. सो दैट्स वेरी, एंड फिर आप वो मार्किंग करोगे ऊपर ऊपर, आपको खुद नहीं पता वो कौन सा वाला बीच में मिस हुआ हुआ है. करेक्ट. तो इट्स बेटर टू बी वेरी मच अवेयर, राइट? वेरी मच अवेयर. एंड देन फिर इंटरव्यू के लिए गया तो इंटरव्यू पूछते कि अच्छा क्या, मैंने कहा सर वो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया, कह रहा कोई बात नहीं. सो इट वाज लाइक दैट. एंड सो साइक में, उसके बाद साइक में SRTs, फिर उसके बाद वैट आई वाज टॉकिंग. तो वैट में ट्राई टू डू ईच एंड एवरी वैट, अवॉइड यूजिंग IAV, ऑल दीज थिंग्स. एंड देन की ऑनेस्टी आ गया तो ऑनेस्टी से, दिस इज वेरी बेसिक, आई एम जस्ट सेइंग. तो ट्राई सम मीनिंगफुल सेंटेंसेस लाइक व्हिच कुड शो योर क्वालिटीज, है ना. जस्ट डोंट राइट सम फैक्चुअल सेंटेंसेस या फिर कुछ ऐसा कि भाई कोई कोट लिख दिया. दे आर नॉट देयर टू राइट कोट्स, एवरीबॉडी नोज कोट्स, ठीक है. तो वहां पे वो अलग चीज ढूंढ रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं, तो आप कुछ और क्यों दिखा रहे हो? आपका मौका है वो, आप उसको दिखाओ. उसके बाद आपकी SRTs आई डोंट नो. I could do 60 SRTs this time. I did 60 out of 60. In NDA attempt, I could do only 38. And then here I could do 60 out of 60, and then 5 minutes were left after I did 60 SRT. How did you improve this speed? I improved my writing practice. And then somewhere or the other मैंने अपने माइंड को इतना ट्रेन कर लिया था कि यार अब प्रेशर नहीं लेना है, मतलब प्रेशर में भी कूल रहना है. तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट आई थिंक. तो मैं एकदम कूलनेस के साथ, सबकी फटी पड़ी है, कोई 30वें में है, कोई 40 में है, मैं 50-55 में पहुंच गया हूँ, हो गया मेरा 60 हो गया, मैं बैठा हुआ हूँ, कह रहे हो गया, मैंने हाँ हो गया.
तो 60 SRTs, try doing SRTs at least 45 to 50 plus. एंड प्लीज डोंट लीव सम एसआरटीज इन दी बिटवीन. अगर मान लो कि आपने 10वें या 12वें एसआरटी छोड़ दी, आपने 14वीं कर दी, फिर 15वीं है, ये दिखाता है कि आप भाग रहे हो सिचुएशन से, आप उसको फेस नहीं करना चाह रहे हो, विच कम्स वेरी नेगेटिव टुवर्ड्स यू. तो फिर आपको ये फेस करना चाहिए. एंड देन सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट. सो बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन रहता है कि प्रिपेयर करके जाएं या नहीं जाएं. तो फिर आई जनरली प्रेफर कि हाँ, एक आइडिया तो बेसिक रख ही लूं दिमाग में कि हाँ कहीं क्या लिखना है वहां पे, कि वहां बिल्कुल ब्लैंक तो 15 मिनट में नहीं लिख पाया कोई बंदा. एक आइडिया रखता हूँ दिमाग में, और फिर जैसे जैसे मैंने टैट वैट किया हुआ है वही फ्रेश दिमाग में कुछ कुछ रहता है कि हाँ, तो मैंने उस हिसाब से अपने पीआईक्यू से भी कुछ कुछ सोच के मैं लिखता रहता हूँ. फिर तो फिर वो जैसे जैसे आती रहती हैं चीजें, वैसे वैसे आई स्टार्ट फीलिंग इट. एंड कुछ बेसिक आइडिया पहले से भी रहता है, तो हो जाता है वो 15 मिनट में. तो अच्छा, एक और एसडीटीबी मेजर डाउट है, एवरीबडी इज कंफ्यूज रिगार्डिंग वेदर दे शुड राइट देयर नेगेटिव्स इन द एसडीटी लाइक ईच पैराग्राफ. नेगेटिव पॉइंट्स लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, आपको क्या लगता आप नेगेटिव क्या लिख रहे हो वो डिपेंड करता है. डोंट शो समथिंग विच आप जबरदस्ती अगर दिखा रहे हो जो कि शायद आपके नेगेटिव भी जा सकता है. डोंट डू दैट. अगर आप कुछ है भी आपके में नेगेटिव, एवरीबडी ऑफ अस, सबके में फ्लॉज हैं, कोई परफेक्ट भगवान नहीं है कोई, तो सब में है. एंड देन समवेयर राइटिंग योर नेगेटिव कुछ ना कुछ कि हाँ आप में ये, इनके आपके पेरेंट्स के हिसाब से आप में ये कमी है, ये कहीं ना कहीं लिखना एक अच्छी बात भी है, क्योंकि आप एक्सेप्ट करते हो कि हाँ आप भगवान नहीं हो, आप में भी कमियां हैं. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि एक्सेप्टेंस है आप में. और फिर आप उसके लिए क्या कर रहे हो. जैसे पर्सनली मैं कुछ कभी कभार कहता था कि मेरा वोकैबुलरी उस टाइम पे नहीं था, इंडियन टाइम पे, तो मैं कहता था मेरा वोकैबुलरी इतना अच्छा नहीं है, बट देन आई एम वर्किंग फॉर इट, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड देन आई डू पब्लिक स्पीकिंग एंड ऑल. तो फिर मुझे पता है ना एटलीस्ट कि हाँ मेरी क्या कमी है, तो वो मेंशन करो. बट देन यू आर स्मार्ट इनफ व्हाट टू मेंशन व्हाट नॉट टू मेंशन, है? सो एग्जैक्टली, इट्स बहुत लाइक दैट. ज्यादा नेगेटिव ऐसा नहीं मेंशन करना कुछ कि आपका कोर वैल्यूज क्वेश्चन हो, राइट? ओके. सो साइक अच्छे से आपने काफी कवर कर दिया डीप में. अभी इंटरव्यू की बात करते हैं, ठीक है? अगेन इंटरव्यू में आपको क्या लगता है कि किस टाइप की ऐसे क्वेश्चंस है जो टैकल करने थोड़े डिफिकल्ट है, लाइक जिनकी प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है? वैसा सब सोचते कि इट विल बी राउंड अस, बिना प्रिपेयर करके भी जाएंगे तो क्या ही है, हो जाएगा, बट देन दे रिग्रेट नॉट प्रिपेयरिंग फॉर इट, है ना? तो वो क्या सेक्शन है और व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर जो डेफिनेटली प्रिपेयर होना चाहिए? मैं पहले एनडीए से स्टार्ट करता हूँ. आर्मी में जब मैं बैंगलोर गया था, तब all of course your PIQ is already there with the IO, and then the IO is somewhere or the other, आपको देखने से पहले उनके दिमाग में ये इमेज है कि हाँ ये बंदा ऐसा ऐसा है, इसने ये सब किया हुआ है, तो ये बंदा मैं उसके हिसाब से कि हाँ भाई अच्छा है या तगड़ा है या मीडियोकर है, तो उसके दिमाग में एक ऑलरेडी प्री कंसीव्ड है. है तो फिर हाँ, when you walk in, वहीं से योर जजमेंट स्टार्ट्स कि हाँ भाई हाउ ही इज कमिंग इन, तो मैं आ रहा हूँ, कोई किसी की बिल्कुल फटी पड़ी है कि वही बैठा हुआ है सामने. तो फिर when you sit there, first he tries to make you comfortable कि हाँ भाई कहाँ से आ रहे हो, how's the journey, where did you stay last night before screening and all, and then like that. उसके बाद then he says कि now for the next 40 to 45 minutes gentlemen, we'll be discussing more about your life, and let's start, something like that. So then the CIQs come. Your CIQs, it's a pattern of questions. CIQ 1, 2, 3, it's a pattern of questions which are somewhere or the other arranged in that manner only. Ki, tell me about your education from class 8 onwards. Tell me about your participation in extracurricular activities and sports. Tell me about your family, your friends, the friends you like, the friends you do not like, the subjects you like, the subjects you do not like, something or the other like that. Your schooling and all your subjects. What are you doing in college? What was there in your graduation? So all these things he keeps asking. उसके बाद he knows all those things क्योंकि यहाँ PIQ है उनके पास. फिर उसके बाद वो ये भी पूछते हैं कि हाँ भाई जैसे मेरा साइंस बैकग्राउंड था, पीसीएम था, वो मेरे से बोलते कि तू बीए में क्यों आया. तो एग्जैक्टली. आई कुड जस्टिफाई इट. उनको जस्टिफाइबल होना चाहिए कि हाँ भाई पहले ये बताओ कि खुद जस्टिफाइड हो कि क्यों ले लिया ऐसे ही, तो फिर तभी यू विल बी एबल टू जस्टिफाई हिम, नो. तो फिर ये चीज उनको ये रहता है इंटरव्यू में. एंड देन एनडीए के इंटरव्यू में मैंने ये चीज देखी यार, बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया गया, बहुत ज्यादा. तो मैं उस टाइम पे मेरा फिजिक्स वीक था, तो मेरा फिजिक्स वीक था, तो मेरे 11th 12th में ही कुड
लाइक ही आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, मतलब वो ऐसे पूछने लगे, अच्छा मुझे बताओ ग्रेविटेशन का वो वाला फॉर्मूला बताओ। मैंने कहा सर वो रिमेम्बर्स इट यार, 2-2.5 साल हो गए अब। तो इट वाज इन माय एनडीए के टाइम पे। फिर बोलते हैं कि अच्छा बैंकिंग ऑफ रोड का फॉर्मूला बताओ। मैंने कहा बैंकिंग ऑफ रोड शायद तो चैप्टर भी स्किप कर दिया होगा, आई डोंट रिमेम्बर। मैंने कहा नो सर आई डोंट नो। तो फिर क्वेश्चन पूछते रहे, पूछे फिजिक्स के ही क्वेश्चन, उन्हें पता लग गया कि हाँ भाई इसकी नहीं फिजिक्स आता। गोल है। तो हम्म। इसने पूछते लगे 11th के, खासकर पहले टर्म के। मैंने कहा सर नहीं आता नहीं आता नहीं आता। कहने लगे कि ब्लडी चैप, यू कॉल योरसेल्फ द कैप्टन ऑफ सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, और तेरे को ये क्वेश्चंस नहीं आते। बट देन स्टिल देयर वाज अ स्माइल ऑन माय फेस एंड देन आई सेड सर नहीं आते। so I was like that, but the sorry sir, कहते सर आई सॉरी सर, तो he started laughing. तो it's like that. So कई बार इन लोगों को ये लगता है कि यार मैं नहीं आंसर कर पाया, नहीं आंसर कर पाया, शायद ये नेगेटिव चला जाएगा मेरे लिए। बट नहीं, it's your facial expressions and how you react to his questions and the pressure that he's putting in, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर एंड देन हाँ, आर्मी के लिए आई वुड सजेस्ट आईओ। ही जनरली आस्क्स कि हाँ भाई इफ यू गोइंग इन व्हिच आर्म्स वुड यू लाइक टू जॉइन। For male candidates, you want to join infantry, which regiment? Why? Parachute regiment? Oh, why? If not para, then which regiment? If not infantry, then which corps regiment? तो ये सब चीजें यू शुड बी वेल अवेयर कि हाँ भाई अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ, तो इसके बारे में मुझे एक आइडिया हो कि नहीं वहां ब्लंटली जाके बोला हाँ भाई मुझे आर्टिलरी ज्वाइन करना है, क्या करता है आर्टिलरी में पता नहीं सर। तो ये सब चीजें यू मस्ट नो। एंड देन एयरफोर्स वाली एसएसबी आई विल बी टेलिंग। तो एयरफोर्स वाली एसएसबी मुझे इतना प्रेशराइज नहीं किया, इट वाज द प्रेसिडेंट, देयर आल्सो इट वाज द प्रेसिडेंट, हियर आल्सो इट वाज द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट एंड देन आई एंटर्ड एंड देन ही सेड कि हाँ अखिलेश, तो हाउ वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम एंड हाउ हाउ आर यू ट्रैवलिंग, हाउ डिड यू ट्रैवल एंड देन वेयर डिड यू स्टे लास्ट नाइट, ऐसे ऐसे करके ही आस्क्ड। एंड देन ही सेड कि सब यू वेयर डू यू लिव इन दिल्ली। मैंने कहा सर आई लिव इन सफदरजंग एन्क्लेव। तो कहते कि अच्छा कॉलेज पास में ही है। मैंने कहा हाँ सर कॉलेज पास में ही है। तो कहते कि अच्छा कहाँ रह रहे हो दिल्ली में, पीजी या फ्लैट। मैंने कहा वो ये, मैंने कहा सर फ्लैट। कहते व्हाई व्हाई नॉट पीजी। मैंने कहा यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो गया, आपने इसका क्या आंसर करूँ। तो मैंने कहा सर, फिर मेरा माइंड एकदम चल गया। मैंने कहा कि मैंने अपने पीआईक्यू में लिखा हुआ था कि माय हॉबीज आर मोटरसाइकिल राइडिंग। तो मैंने बोल दिया कि सर दिन में बहुत ट्रैफिक रहता है और पीजी अगर मैं लेता तो 10 बजे बाद गेट्स बंद हो जाते हैं, तो कैसे मैं जा पाता। तो मैं शाम को रोड्स खाली रहती है, मैं दिल्ली कैंट मैं चला जाता हूँ, मैं बाइक राइडिंग करने। सब कहते कहाँ जाते हो, हाउ डू आई टेल हिम दैट आई गो टू सीपी। आई टोल्ड हिम कि सर आई गो टू दिल्ली कैंट। दिल्ली कैंट में कहाँ सर, करियप्पा परेड ग्राउंड के आसपास ये सब। तो ही सेड ओके ओके ओके। हम्म। देन एंड एयरफोर्स की एसएसबी में वो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये भी है कि आपने ब्रांच कौन सी चूज की और आपने ये ब्रांच क्यों चूज की। एग्जैक्टली। सो ही आस्क्ड मी कि कौन सी ब्रांच चूज की। आई सेड एडम। ही आस्क्ड मी व्हाई नॉट फ्लाइंग। तो आई सेड सर मेरा मेडिकल इशू है, मेरे आंखों में चश्मा है। कहते हु आर यू टू डिसाइड कि तेरी आंखों में चश्मा है या नहीं है, मतलब क्या पता ये आंखें ठीक हो गई हैं। मैंने कहा सर चेक करवाया था। तो फिर देन ही सेड कि ओके यू फिल फॉर एडम। मैंने कहा यस सर। तो कहते कि एडम में क्या सब ब्रांचेस रहती हैं। सो पीपल एग्जैक्टली। मस्ट नो हियर दैट देयर इज एफसी फ्लाइट कंट्रोलर एंड देयर इज एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। तो ये दो रहती हैं एंड देन देयर आर अदर ब्रांचेस टू। एंड देन ही आस्क्स अ बेसिक नॉलेज अबाउट कि हाँ भाई फ्लाइंग वाला अगर कोई एएफए में जाता है तो वो कहाँ ट्रेनिंग करता है एंड देन विच एयरक्राफ्ट डज ही फ्लाई देयर इन दी स्टार्टिंग। एंड देन इस एंट्री डायरेक्ट विच थ्रू सीडीएस कितनी ट्रेनिंग है, थ्रू एनडीए कितनी ट्रेनिंग है, एनडीए कहाँ है। बेसिक सवाल काफी बेसिक लोगों से पूछते हैं, कईयों को वो भी नहीं पता होते। तो एग्जैक्टली। फिर या तो फिर हैव अ बेसिक नॉलेज अबाउट एवरीथिंग। देन ही आस्क्ड मी कि हाँ भाई ओनली परमवीर चक्र, टेल मी अबाउट हिम, which aircraft was he flying and why did he get Paramveer Chakra। and then so उसके बाद my service got changed। no, पहले मैंने आर्मी भरा था, फिर मैंने एयरफोर्स भरा। so then he said कि why did you fail for army when कि अगर एयरफोर्स में you could have come, पहले आर्मी क्यों भरा। and then now that you got already recommended for army, why did you come for air force। so I could justify him that। so जो भी आपके previous attempts रहे हैं, आप पहले से प्रिपेयर रहो कि हाँ भाई ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, कि आपने सर्विस चेंज की है तो आप जस्टिफाई कर पाओ उन्हें कि हाँ भाई मैंने इस वजह से किया है। तो मेरे आंसर से ही वाज वेल सेटिस्फाइड कि हाँ भाई ये ठीक है, अब इसका अब यहाँ पे आ गया है, ऐसे ऐसे है। तो यू मस्ट बी एबल टू जस्टिफाई हिम। एंड देन एनडीएसएस में तो ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, बट एफकैट की एसएसबी में दिस क्वेश्चन केम
he said pehle he was not going directly. Then there's my elder sister also, and I have an elder brother also. So my elder brother is married now. तो he asked me कि okay sister आपकी married नहीं हुई? मैंने कहा no sir, she's a doctor and वो नहीं अभी, she's not yet married. तो कहते कि you are searching someone for her? मैंने कहा no sir, not yet. तो he said कि okay so what about you Akhilesh? What about you? You don't have a girlfriend. Now I said ki no sir, I don't. कहते कि why see your PIQ, you've been so active in NCC, so active in sports. कैसे नहीं? How you don't have a girlfriend? And I said, what do I say? And I said ki sir, actually my mama wants me to marry a Kumaoni girl, so I'm searching for one. तो कहते कि अब मैं मान ही नहीं सकता कि यार तेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो तेरे को कोई कुमाऊनी लड़की नहीं मिली. मैंने कहा what do I say now? And I said कि sir actually है लेकिन they are not career oriented and ऐसे ऐसे करके. Then he said okay. So this question somewhere or the other somehow है ना? yeah, you are not prepared for it कि हाँ ठीक है. Somehow something or the other came in my mind and then I said कि हाँ भाई ये बोल देना चाहिए. तो and then constantly he's looking at the watch, he's writing something, he's looking at the watch and then making me feel कि I'm not interested in what you're saying. But then you should be speaking with that same josh and enthusiasm. Right. Okay. Because it is like again a pressure tactics ना. दिखा रहा हूँ आपको. करेक्ट. एंड मेरे तो दोस्तों के साथ भी ऐसा हुआ है, खड़े हो गए टाइम देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, खड़े होकर अपनी दीवारों में देखने लगे. यू कीप स्पीकिंग, आई एम लिसनिंग टू यू ऐसे करके. और फिर अपनी दीवारों में देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अपनी कुछ चीजों से कुछ कर रहे हैं, लेकिन नॉट लिसनिंग. ही इज लिसनिंग बट देन he just wants to see कि when I'm not seeing you are speaking nicely or not. Nicely. So exactly. yeah, so it was my interview experience. That was actually great, है ना? एक अलग आपको मिला experience from NDA to AFCAT. थोड़ा आपको diversion भी देखने को मिले दोनों SSB में. Yes ma'am. Right. Okay, now talk about GTO, है ना? People think that if they have not practiced for GT on ground, they cannot clear it. थोड़ा सा ऐसा myth लगता जो first time जाते हैं especially उनको कि हमने प्रैक्टिस नहीं किया ग्राउंड पे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर जीटी. बट लाइक बहुत ज्यादा कुछ है ऐसा कि कुछ टास्क तो वैसे भी इंडोर ही है उधर, है ना? नॉलेज बेस्ड है आपका, जीडी जीटी है. तो आपका क्या स्टांस था ऑन द जीटी पार्ट एंड हाउ डिड यू प्रिपेयर? आई वुड लाइक टू टेल ऑल द एस्पिरेंट्स कि भाई 9 टास्क होते हैं जीटीओ में, ठीक है? डे 1 एंड डे 2. डे 1 में 6 एक्टिविटीज हो ही जाती हैं लगभग. कभी 6 नहीं हो पाई तो लेक्चरेट तक तो हो ही जाता है, 6टा एक्टिविटी. एंड बाकी 3 अगले दिन के लिए छोड़ ही देते हैं. तो एयरफोर्स में तो ऐसा भी होता है कि कॉन्फ्रेंस डे के दिन कई बार एक ग्रुप जा रहा है, फाइनल 3 दिन. आर्मी में ऐसा नहीं होता, आर्मी में चौथे दिन तक सब निपट जाता है एंड देन लास्ट डे इज फुल फ्लेजेडली केप्ट फॉर कॉन्फ्रेंस ओनली. तो फिर यार जो आपकी सबसे पहले इट स्टार्ट्स विद ग्रुप डिस्कशन. आपको पहला टॉपिक दिया जाएगा, आपको 2 टॉपिक दिए जाएंगे. पहले 2 जीडी होंगे. पहले जीडी में आपको 2 टॉपिक दिए जाएंगे. देन यू आर टोल्ड टू डिस्कस अमंग द ग्रुप कि हाँ भाई कौन सा टॉपिक इज मोस्ट सुटेबल फॉर आवर ग्रुप. यू जस्ट से कि हाँ, यू मेक श्योर दैट यू डोंट टेक मच टाइम इन दैट. कोई जरूरत नहीं है कि हाँ भाई इतने टॉपिक करना है, कंसेंसस ले लिया, हाँ भाई करना है सर दिस टॉपिक, जल्दी से डिसाइड करो एंड देन स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट इट. एंड द सेकंड टॉपिक you don't get a choice. The GTO himself gives you that topic and then you have to discuss on it. So GD plays a vital role. GD plays a vital role. This is the first activity. It is the first impression in front of the GTO. He'll be observing you for the first time. You have to give your introduction also. सबसे पहले ऐसे करके. And then, तो because psychologist में he is not seeing you physically. Exactly. GTO is someone who is there for 2 days with you. And that's your karma. तो फिर आपको अच्छे से हर चीज करनी है और बहुत ध्यान से सब चीजें करनी है क्योंकि एक एक चीज आपकी निगरानी में रखी जा रही है जीटीओ में. तो फिर फॉर द जीडी आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि यार डोंट शाउट इन जीटी. देयर इज नो पॉइंट ऑफ शाउटिंग. आप चिल्ला रहे हो, कोई और कहीं चिल्ला रहा है, just be attentive towards the other people कि हाँ भाई okay chest number you list, I'm listening to you, and then when you get a chance just speak बीच में जाके. And then don't speak too much, speak adequately and speak good content होना चाहिए. कि कुछ भी बोल रहे हो, उसने बोल दिया, उसी बात को मैंने भी रिपीट कर दिया, क्या फायदा? और हम सोच रहे हैं कि हमने बोल दिया, लेकिन वो
he has been trained for it and he knows everything कि हाँ भाई यहाँ पे कौन किसको कितना नॉलेज है और कितना यहाँ पे बोल पा रहा है, कौन रिपीट ही कर रहा है बस. So GD में, and then don't be aggressive. I told you, the person he did like this to the other person, chest कि हाँ chest number 39, let me speak. Don't do that also, because लोग aggressive हो जाते हैं really, ऐसे ऐसे करने लगते हैं, अपने ऐसे मुट्ठियां बदन कर लेंगे, ऐसे ऐसे बहुत गुस्से में आ जाते हैं लोग, and then every पैर वैर खाने लगेंगे. तो एकदम काम माइंड हो गया कि हाँ भाई जीडी तो है, अभी तो मेरे पास और एक्टिविटीज भी हैं, लेकिन 2 जीडी हैं, 20-20 मिनट की 2 जीडी हैं यार, कैसे नहीं मिलेगा किसी को चांस. एंड देन ट्राई टू स्पीक इन द फर्स्ट 3 चांसेस ओनली. इफ यू आर नॉट एबल टू इनिशिएट, दूसरे में तो बोल ही दो, और दूसरे में भी इनकेस नहीं बोलो, तीसरे में तो बोल ही दो. वो भी आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है. आप अब लास्ट में बोल रहे हो जब सब बोल चुके हैं तो फिर क्या फायदा, जब स्टार्टिंग में ही आपको बोलना चाहिए. उसके बाद देन इट कम्स की जीपीई, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज. तो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में आपको आपको एक स्टेप आगे रहना पड़ेगा जीटीओ से. जीटीओ जब आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये रास्ता यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे टी स्टॉल है, यहाँ पे ये है, आपको पहले से कैलकुलेट कर लेना है कि हाँ भाई ये इतना इतना है, इतने इतने में ये 5 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर है, तो मतलब यहाँ से यहाँ ये शायद 8 किलोमीटर होगा, यहाँ से यहाँ शायद इतना किलोमीटर होगा, शायद इतना टाइम लगेगा, ये मेटल रोड है, नॉन मेटल रोड है. आपको सोचना पड़ेगा उतना आगे. अब तब जाके सोचोगे जब वो पेपर देंगे, फिर सोच रहे हो कि हाँ भाई ये ऐसे, फिर तो टाइम ही कैलकुलेट करने लग जाओगे, वो याद ही नहीं रहेंगी चीजें, क्योंकि पेपर तो दे लिया जाता है बाद में. जब वो समझा रहे हैं वहां पे, तब आप उसको देख लो और उसको सोचो कि हाँ भाई ये इतना डिस्टेंस है, ये शायद इतना किलोमीटर होगा, ये इतना किलोमीटर होगा. बना लिया एक माइप माइंड मैंने. एक बार उन्होंने समझाया, फिर उसके बाद आपने पढ़ा, आपने रिलेट किया, कॉपीज वापस करी, आपने लिखना स्टार्ट किया. लिखने में जस्ट बी, बिकॉज that written thing is the only written thing that will be there as an evidence or as a thing with the GTO. ठीक है, साइकोलॉजिस्ट के पास तो सभी कुछ रिटर्न है, लेकिन जीटीओ के पास एक ही चीज रिटर्न है, वो है आपकी जीपी. आप कितने अच्छे से लिखते हो, कितने अच्छे से प्रेजेंट करते हो उसे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आप डिस्कस करते हो, डिस्कस करो अच्छे से. जीडी के डिस्कशन के बाद आपको पता लग जाता है कि हाँ भाई कौन बंदा बोलने वाला है, कौन अच्छा बोलता है या कौन बस बकवास कर रहा है यहाँ पे. तो फिर आपको एक आइडिया पड़ जाता है, आपको फिर उसी हिसाब से आपको ग्रुप मेंटेन करना है, और फिर उसी हिसाब से आप डिस्कस करते हो, थोड़ी देर डिस्कस करते हो. फिर देन आई वाज मेड दी कि हाँ भाई आप ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज का फाइनल प्लान मुझे बताओ. तो मुझे बोला गया था, हाँ मुझे बोला गया था, तो फिर आई कुड नरेट इट वेरी वेल एंड देन इट सम्ड अप, जीपी सम्ड अप. उसके बाद द फाइनल इज, द थर्ड वन इज पीजीटी, progressive group task. The time limit for that is 45 minutes. There are 4 obstacles and then you have to clear all of them, and then there are certain rules for that. There is 1 fatta, 1 balli, 1 rope given to you. There's your group, and then you just give your ideas, you coordinate with people, you keep going forward, and then in the given time frame you try to cross the 4th obstacle. So in brief it was like that. तो फिर our GTO what he did कि दूसरे तीसरे ऑब्स्टिकल के बाद he left the ground, and then everybody became very कि लाइट मूड में हो गए सारे कि हाँ जीटीओ चले गए मस्ती में, कोई पीछे है तो आगे चला जा रहा है, कोई प्लेस रिप्लेस कर रहे हैं आपस में, और फिर भट्टा बल्ली उल्टे सीधे कुछ भी लगा के कर रहे हैं. बट देन आई कुड ऑब्जर्व इट, इज दिस ग्राउंड्समैन होते हैं हर जीटीओ के. he was standing there and he was watching all of us. And then when the GTO came, he said something to him. And we all know what was it. So GTO said ki you changed your position, chapter just number 46, you changed your position with 41. How could you do that? किसने बोला तुमसे करने के लिए? Then they said sorry sir. कहते don't give this over smartness है. ठीक है. और फिर वो गुस्सा से हो गए थोड़े से, तो हमने बस 3 ही किए हुए थे ऑब्स्टिकल, तीसरे में ही थे हम. उन्होंने बोला टाइम सब अपनी करने तुम आगे, तो उन्होंने करने नहीं दिया हमें आगे. तो कहीं ना कहीं वो डिमोरलाइज करने के लिए भी होता है कई बार, टाइम लिमिट हो गया, हो भी जाता है वैसे कि हाँ भाई कि वो सारे ग्रुप फिर डिमोरलाइज हो गया कि यार हम लोग पूरा नहीं कर पाए, शायद हम में से कोई भी रिकमेंड होगा नहीं. तो इट ऐसा तो डजंट मैटर. होता ही नहीं है, बिकॉज बहुत सारे केसेस में नहीं होता है 4th ऑब्स्टिकल पूरा. बट थिंग इज दैट व्हेन यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स, वो बहुत नेगेटिव है ना, एज एन इंडिविजुअल और एज अ ग्रुप. तो वो यू शुड बी अडायरिंग टू द रूल्स व्हाटएवर. करेक्ट. और अगर गलती से कोई रूल टूट भी जाता है तो जस्ट गो बैक, put it again and do it again. कि ऐसा मत करो कि यार देखा नहीं, शायद नहीं देखा होगा, मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ. He is watching everything, okay? And then so the first 3 activities that took place, GD, GP and PGT, ये जो 3 चीजें हैं,
आपका 60-70% रिजल्ट बन चुका है इसमें। द जीटीओ हैज एन Exactly. आइडिया नाउ कि हाँ भाई ये बंदा है, ये बंदा है, ये बंदा है, ये तीनों ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, ये सब शायद उतने नॉन रिकमेंडेबल हैं, ये हाईली रिकमेंडेबल हैं, या फिर ये मॉडरेट केसेस हैं। Basically, तो they ही हैज एन categorize आइडिया, the group in 3 कैटेगराइज, categories, right? यस And करेक्ट, according to that only he'll proceed in the upcoming task. करेक्ट, वो सब Yeah. हो चुका है। एंड देन उसके बाद हाफ ग्रुप टास्क आता है। हाफ ग्रुप टास्क में यू आर डिवाइडेड इन 2 सब ग्रुप्स। उसके बाद आपको 2 ग्रुप में अलग अलग, सो दैट इज बेसिकली टू चेक कि आप शायद ग्रुप में आपको मौका ना मिल पाए हो, तो एक छोटे ग्रुप में आप कैसे परफॉर्म कर पाते हो, एक कम Exactly. लोगों में क्या आप आइडिया दे पाते हो, या फिर आप वो हो जो भीड़ में छुप जाते हो, है ना। तो फिर वैसे, एंड देन हाफ ग्रुप टास्क, एंड देन इट्स ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। Exactly. पहले एयरफोर्स The में most. बंद हो गई थी बीच में, अब स्टार्ट हो गई दोबारा। देन दे टेल यू कि हाँ भाई अपना अपना जोश साइन क्या होगा तुम लोगों का। कोई बोलता है भारत माता की जय, कोई कहता है इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है। सो आज वॉज भारत माता की जय, 4 ग्रुप थे। एंड देन जीटीओ बताते हैं कि ये ऐसे करना है, ये वाला ऐसे करना है, ये वाला ऐसे करना है। एंड देन दे कीप गिविंग यू क्या कहते हैं पेनल्टीज, कि हाँ भाई आप रोप टच हो गई है नीचे, स्नेक टच हो गया है नीचे, तो आप अब दोबारा स्टार्ट करो, या फिर 5 सेकंड का 5 4 3 2 1 ऐसे करके। सो इट्स बेसिकली टू बूस्ट अप योर मोरल, ठीक है, कि हाँ भाई ग्रुप अब अभी तक करता आ रहा है, अभी तक शायद जीटी-जीपी में कुछ लड़ाइयों में बजी होंगी, लड़ाइयां बज जाती हैं वहां पे। तो एक बार जीपी में सब एक साथ जब दौड़ते हैं तो एक मोरल अप हो जाता है, सब एक टीम स्पिरिट आ जाती है सबके अंदर। तो फिर वो कहीं ना कहीं वो करने के लिए, क्योंकि अभी कुछ एक्टिविटीज और बची हुई हैं। उसके बाद Right. लेक्चरेट में ही सेज कि हाँ भाई अब हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे या फाइनल से स्टार्ट करेंगे। द कैंडिडेट्स दे आर सिटिंग लाइक दिस, facing towards that side, and GTO is sitting behind the candidates. And then the first cab goes, he picks up the card, and then he is given 3 minutes time, practice करता है वहां पे, आता है, and then he speaks. तो 4 टॉपिक्स में पहले 2 टॉपिक तो एकदम अच्छे होंगे, अच्छे लेवल के। तीसरा टॉपिक मॉडरेट होगा, चौथा टॉपिक बिल्कुल ही हल्का होगा, कि माय फेवरेट टीचर, माय फेवरेट स्पोर्ट, Right. या फिर माय हॉबीज। व्हाई यू आर अ ग्रेजुएट नाउ, बट पहले के 3 टॉपिक में तुम्हें कुछ नहीं आता और तुम अब माय हॉबीज पे बोलोगे। इट डिपेंड्स कि यार कितना अच्छा बोल पाए। मैंने ऐसे भी देखा कि लोग चौथे टॉपिक में बोल रहे हो फिर भी रिकमेंड हो गए, बहुत क्योंकि अच्छा कैसे बोलते हैं क्योंकि कैसे आप अच्छा बोल रहे हो। लेकिन राइट। आई वुड सजेस्ट कि पहले 2 टॉपिक में ही, मेरा तो रहता है कि हाँ भाई पहले 2 टॉपिक में ही कहीं ना कहीं हंट करना है, कि हाँ इन दोनों में से ही मुझे चूज करना है। तो अच्छे से यू स्पीक अप, एंड देन यू लिसन टू अदर्स ऑल्सो। फिर पहले दिन में यू नो कि भाई जीटीओ में कौन कौन तगड़े बंदे थे, इनमें से शायद ये सब रिकमेंड हो सकते हैं, मेरा कितना चांस बन रहा है, मैंने कितना पार्टिसिपेट किया, आपको पूरा आइडिया आ जाता है। और जीटीओ में भी आई एम श्योर पूरा आइडिया बन जाता होगा कि हाँ भाई ये बंदे थे दमदार और ये ठीक था। उसके बाद जाते से ही अगले दिन इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल से स्टार्टिंग होती है। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में ही एक्सप्लेन्स यू ऑल द ऑब्स्टिकल्स, and then you're given a time of 3 minutes 3 or three and a minutes. half 3 3 minutes, 3 yeah, minutes. 2.5 plus 30 seconds extra. Exactly. So I could do 9 obstacles this time, and in my NDA attempt I had an injury. Okay. तो उस इंजरी की वजह से I could do only 4 individual obstacles. So I would also like to say कि अगर आप इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल कम कर पा रहे हो, दैट डजंट मैटर कि आप रिकमेंड। कई लोग बोलते हैं यार शायद मैंने इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल एक कम कर दिया इसीलिए मैं नहीं हुआ, कहीं और हुआ है कुछ, ये इस वजह से नहीं हुआ। Exactly. आपका रिजल्ट तो बन गया तब तक, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल से करना था तो दौड़ा देते ना एसएसबी में, है ना। ऑफ कोर्स इट मैटर्स, आई वुड नॉट से अगर मैटर नहीं करता तो वो चीज होती ही नहीं। लेकिन अगर मेरे तो इंजरी थी, मैं उस टाइम में एनडीए में अच्छा नहीं कर पाया, मैंने इस वाले में 9 कर दिए थे। तो यही रहता है, 8 9 तो कर ही लेते हैं सब लोग, 10 भी कर लेते हैं। कुछ लोग मेरे में ऐसे भी था जो 15 कर लिया था, 10 कर लिए उसने, Exactly. 5 रिपीट भी कर लिए, ऐसे भी होते हैं लोग। तो बट ही वाज नॉट रिकमेंडेड। तो डोंट जज योर परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, ठीक है। इट मैटर्स बट देन आई डोंट थिंक इट मैटर्स एज मच एज द फर्स्ट 3 टास्क मैटर, 3 tasks. ठीक Exactly. है। उसके बाद फिर Command इट्स task. कमांड टास्क। सो कमांड टास्क इज लाइक इम्पोर्टेंट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी क्लास इज इम्पोर्टेंट, बट आई फील कि इसमें थोड़ा सा रहता भी है। तो मैं ऐसे रैंडमली ही कॉल्स, एंड देन ही टेल्स यू, देन he is having some chit chat with you, the GTO for the Exactly. first time he is talking to you in person, कि हाँ भाई अखिलेश कहाँ से हो, क्या है, कौन सा अटेम्प्ट है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद देन ही टेल्स यू टू कॉल
2 people from your group as subordinates. So then I called. Then he asks, why did you call him? Why did you call this? Why did you call this guy? Why did you call this guy? So there is one sociometry chart जिसमें वो रिकॉर्ड रखते हैं कि हाँ भाई इसने इसको बुलाया, इसने इसको बुलाया. बट मतलब ऐसा कई लोग सोचते हैं कि मेरे को इतनों ने बुला लिया भाई, मेरे को पूरे ग्रुप वाले, मैं तो डजंट मैटर, मेरे को सिर्फ 2 लोगों ने बुलाया था. ठीक है, तो एक बंदा था जिसको सिर्फ एक ही ने बुलाया था, वो भी हो गया था. और जिसको सबने बुलाया था वो नहीं हो पाया था. तो और अलग चीजें भी मैटर करती हैं आपके रिकमेंडेशन में, ये भी ऑफ कोर्स एक चीज है, लेकिन वो उतना ज्यादा. तो मैं वहां पे गया, मेरे को काफी टफ दिया था. तो हाँ, टफनेस मतलब मेरे पूरे डिफिकल्टी बढ़ाते चले गए. मैं पहुंचा वहां पे तो मेरे से बोला कि अच्छा करो फिर ऐसे. तो मैंने रस्सी उठा ली, मैं रस्सी से कर रहा. कह रहे हैं तुम हर बात पे रस्सी उठा लेते हो. तो कह रहे यू डोंट हैव दिस रस्सी. उसके बाद मैंने बल्ली और फट्टे से ही कर दिया. उसके बाद और डिफिकल्ट, कह रहे ये लाल हो गया है, ये इसका कलर अब ये नहीं है, दिस इज आउट ऑफ बाउंड फॉर यू, यू कांट गो देयर, नीदर यू आर हेल्पिंग मटेरियल कैन. ऐसे ऐसे आई रीच दैट साइड. कह रहे रिट्रीव करो अब अपने मटेरियल को. तो मैंने फिर मैंने रस्सी उठाई. कह रहे आई टोल्ड यू रस्सी तो आउट ऑफ बाउंड है. रस्सी फट्टा भी हटा दिया, बल्ली बल्ली से मैंने फिर रिट्रीव कर लिया. तो कह रहे कि अच्छा ओके ऐसे गुड कह रहे थे. तो उसके बाद इस कमांड टास्क वेंट वेरी वेल. एंड देन इट्स फाइनल ग्रुप टास्क. फाइनल ग्रुप टास्क में द जीडीओ वुड नॉट इवन ओपन हिज फाइल. ठीक है, Exactly. और his file is just kept there, he's just watching it, he just wants somehow to finish it and then go for the lunch. तो भाई अब जो आप कोई सोचेगा कि मैंने अभी तक नहीं किया, मैं फाइनल ग्रुप टास्क में बढ़िया करके आता हूँ. क्या कर रहा था पिछले 8 टास्क से? तो तेरे को अब सोचने में आया कि मैं फाइनल ग्रुप टास्क में अच्छा करता हूँ. तो हर एक्टिविटी में अच्छे से करना पड़ेगा स्टार्टिंग से, कि लास्ट में मेरी आत्मा जागे कि मैं बोलूँ कि आप फाइनल टास्क में बढ़िया करो. ठीक है, तो फिर it happened and then GTO like he talks with us some chit chat halka fulka, and then he says meet you on the conference day, and then he says he wishes all the best, and then we all march away. So it's like that. My GTO was like this. So actually with GTO candidates do have a personal connection kind of thing ना, कि 2 दिन से उनको देख रहे हैं, थोड़ा दिख रहा कि पता चलता कि हाँ वो क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन लगा के देखते हैं उनको कि सर हमको कर दो बोल के. करेक्ट ट्रू. Right. Okay. अभी कॉन्फ्रेंस में how was the माहौल, like in the rooms or whatever, क्या चल रहा था, मतलब कि कैसा था? And the final when the result was declared, how did you felt? You were prepared or it was like sudden it came? So how was it? तो कॉन्फ्रेंस में आपको जीटीओ के बाद इंटरव्यू हो जाता है. हमें तो एक चौथा दिन पूरा खाली था हमारा. उस दिन आपको पता लग जाता है कि हाँ भाई अखिलेश तेरा हो रहा है या तेरा नहीं हो रहा. आप खुद से बात कर लेते हो तब तक कि हाँ भाई तेरा हो रहा है नहीं हो रहा है. ऐसा नहीं कि सडनली कोई कहता है कि मेरा हो रहा था फिर मेरा नहीं हुआ, या फिर मेरा नहीं हो रहा था मेरा हो गया. एक आइडिया रहता है कि हाँ मैंने कहाँ कहाँ अच्छा किया था, कहाँ कहाँ आप एनालाइज करने लगते हो कि यार अच्छा किया था, ओवर थिंक करने लगते हो. फिर उसके बाद फिर कॉन्फ्रेंस डे में जब मेरी एनडीए की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें बैंगलोर वाले बोर्ड में मैं बैठा हुआ था. तो मेरा जब मेरे से जब पहला वाला बंदा गया, मैं तब टेस्ट नंबर 21 था, क्योंकि टेस्ट नंबर 20 गया, मेरे को कुछ 2 मिनट भी शायद वेट नहीं करना पड़ा होगा, 1.5 मिनट कुछ वेट किया. मैं गया अंदर, बैठाया, हाउ वाज द स्टे, यू लाइक द फूड हेयर, यू मेड फ्रेंड्स, यस ओके जेंटलमैन ऑल द बेस्ट. कुछ 1 मिनट भी नहीं चला होगा. और इसमें भी आई वाज सिटिंग आउटसाइड द कॉन्फ्रेंस हॉल. बहुत कम टाइम वेट करना पड़ा, बहुत ही कम टाइम. मैं घुसा अंदर, एंड देन विच ब्रांच यू वांट टू ज्वाइन, मैंने कहा एडम ब्रांच. उसमें क्या, मैंने कहा एफसी. व्हाई एफसी, मैंने कहा ऑलवेज फैसिनेटेड बाय फाइटर्स जेट्स. तो मैंने कहा इसलिए एफसी. तो कहते कि अच्छा, तो स्टे अच्छा रहा, खाना अच्छा रहा, ये बढ़िया, जाओ. 1 मिनट की बात भी नहीं हुई. और तो कई कई लोगों को रोक लेते हैं वो लंबा लंबा, जो शायद डाउटफुल केसेस रहते होंगे, जिन पे थोड़ा रहता होगा. कुछ साइकोलॉजिस्ट कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं उनसे, एसआरटीज वगैरह पूछते हैं, एंड फिर वो डाउटफुल केसेस भी रहते हैं. एंड देन अगर आपकी कॉन्फ्रेंस छोटी चल रही है तो इधर यू आर short recommended, or either everybody says that. I think it's true only. Exactly. Because they won't spend much time on you, know. अगर आप बिल्कुल ही नो हो तीनों से, तो वो क्यों आप पे फालतू कॉन्फ्रेंस में टाइम वेस्ट करेंगे. और एफकैट की कॉन्फ्रेंस के बाद रिजल्ट बहुत लेट आता है, 4 बज गया, और हम वेट कर रहे हैं एजेंसी हॉल में. यार कोई आदमी, कोई बंदा आ रहा है ऐसी फाइल लेके, हम कहना हो गया, ये तो है ही नहीं यार, ये तो कुछ और लेकर आया था. उसके बाद फाइनली 4 बजे, एंड देन एक डीएसओ ही केम विद द फाइल, stood there at the podium, and then that moment when your heart is just about to come out,
तो फिर उस टाइम पे then he tells कि how some people they have failed in SSB but then they have passed their life and then they have succeeded in their life like greatly. And then there's all, and we are like, jaldi batao yaar, jaldi batao. And then we are sitting, and then he said कि अच्छा ascending से start करूँ या descending से start करूँ? तो he said sir your wish, ascending. तो start किया I was September 21 in NDA 21 बोला date of birth बताओ अपने खड़े होके, और फिर बोला डेट ऑफ बर्थ, अपना नेम बोला, स्टैंड एट द बैक, सब लोग उस टाइम भी हम 8 हुए थे, इस वाले में हम 8 हुए थे। तो Okay. हम आए, खड़े हुए तो बोला चेस्ट नंबर 40, आई स्टूड अप, आई हैड दिस आइडिया, बट देन वो उनके मुंह से वो नंबर सुनने में जो फीलिंग है ना, अनबीटेबल। उसके बाद फिर जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए देहरादून में ताली वाली भी बजाते हैं यार। देहरादून ने बोला कि ओके वो क्लैप स्टेज फॉर द पे बुला रिकमेंडेड के कैंडिडेट। फैसिलिटेट करते हाँ, आप लोगों को प्रॉपर। आर्मी में ऐसा कुछ नहीं देखा मैंने, एयरफोर्स में देखा ये ताली वाली बजाई। And then my friend was there from Sainik School Kunjpura. He was just number 41. We were there for 5. Then you make friends there, no? Exactly. And then कुछ किसी का होता है, किसी का नहीं होता. You feel very bad. So, but then that's part of life. But then, yeah, I hope he'll join the forces soon too. And then you're there, and then you get your phones back. Yeah. And then that's the moment. So I'll tell you the first thing when I NDA days में मिला फोन वापस, पापा से बोला था, स्पीच तो रहता ही है वहां पे, पापा से बोला था कल कॉन्फ्रेंस हो जाएगी 2-3 बजे, फिर कॉल कर लूंगा। तो कॉल किया तो मैंने ये बात हुई थी हमारी, मेरे और पापा की, कि वंस आई गेट रिकमेंडेड यू विल गिफ्ट मी अ रॉयल एनफील्ड। ओके। तो आई सेड कि मैंने बोला था पापा से कि पापा रिकमेंड हो जाऊंगा तो ये नहीं बोलूंगा रिकमेंड हो जाऊंगा, कुछ और बोलूंगा, आप समझ जाओगे। तो कहते 2-3 बजे मैंने कॉल किया, मैंने कहा पापा प्रणाम, तो कहते हैं हाँ, तो कहते हैं, मैंने कहा ऑर्डर कर दो फिर। कहते क्या बात कर रहा है, मैंने कहा सो आई कुड हियर दैट हैवीनेस इन हिज वॉइस, एंड दैट मोमेंट every defense aspirant craves for, when you tell your parents कि पापा I've gotten recommended है। So all his life he has done something or the other for you, he has sacrificed a lot for you, and now it's time that you have to repay him back. तो देन फिर उसके बाद दूसरे वाले अटेम्प्ट पे, एफकैट वाले में मैंने जब कॉल किया तो अभी फोन मिला, तो हाँ बता, मैंने कहा हो गया, कह रहे पता था मुझे वैसे, लेकिन ठीक है। सो इट वाज नॉट सो सरप्राइज इन द सेकंड अटेम्प्ट, पर पहले वाले में ऑफ कोर्स आई वाज यंग आल्सो उस टाइम पे थोड़ा सा, और पहले अटेम्प्ट का अलग रहता है, तो इट वाज लाइक दैट, तो इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। Okay, so this beautifully you have narrated your entire story of SSB, है ना? दोनों attempt आप parallel लेके चले हो। ठीक है, अभी finally I'll ask about this medical thing, है ना? You have seen that pain of not getting fit for medicals, है ना? Recommend हो गए हम, maybe merit in भी हो जाते हैं NDA में, तो उतना कुछ issue ही नहीं है। But medical जब फंसता तो फिर वो कैसा feeling है ना? How do you think one should be prepared for the medicals beforehand? सी मेडिकल्स, भाई मैं सैनिक स्कूल से आता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ भी कभी सीन हो सकता है कुछ, तो भाई इट्स नॉट इन योर हैंड्स, ठीक है। और उसके बाद फॉर योर सेफ्टी, एसएसबी जाने से पहले हर कोई, मुझको लगता है, अपना एक ब्लड सैंपल रिपोर्ट करके, लिवर फंक्शन टेस्ट सब कुछ करके, एक अपना एक्सरेज, सारे एक्सरेज वगैरह कुछ करवा के, एक ब्रीफ आइडिया कि हाँ भाई अगर कुछ 19-20 भी है तो शायद दवाइयों से ब्लड में सही हो जाए, आपको टीआर ना मिले, टाइम वेस्ट होता है उसमें। तो एक प्री बेसिक आप ले सकते हो पहले से, और उसका इलाज आप कर सकते हो पहले से। एंड वही गेटिंग मेडिकली अनफिट इज नॉट एट ऑल अ वेरी गुड, इट्स अ वेरी बैड फीलिंग, ठीक है। एनडीए में तो आई हैड दिस रैंक आल्सो सो गुड, है ना, 121 रैंक था, बट देन मेडिकल में हो गया। एंड देन मैं 2012 से आई वाज प्रिपेयरिंग, जब से सैनिक स्कूल ज्वाइन किया है मैंने, तब से मैं दिमाग में यही था कि एनडीए 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 एनडीए, 10 साल हो गया था लगभग। एंड देन व्हेन यू आर नॉट एबल टू गेट दैट थिंग हिट्स यू डिफरेंटली, ठीक है। अब तो वो चीज कंपनसेट हो गई है, क्योंकि हाँ भैया अब अल्टीमेटली आई एम गोइंग देयर ओनली, बट देन ये जो टाइम फेज था ना ग्रेजुएशन टाइम का, वो चीज बहुत चुभती है, क्योंकि ऑल माय बेस्ट फ्रेंड्स, ऑल माय फ्रेंड्स देयर इन इंडिया, एवरीबॉडी इज इन इंडिया। तो भाई मेडिकल मैं कहूंगा कि अपना पहले से करवा के रखो एक बार अच्छे से। ब्लड में किसी का हीमोग्लोबिन एनीमिया कुछ आ जाता है किसी का, तो वो दवाइयों से हो जाता है ठीक। तो और बाकी एक्सरेज वगैरह करवा के, यूरिन टेस्ट, ये सब चीजें आप बेसिक करवा सकते हो। और बाकी भगवान पे विश्वास रखो, सब अच्छा होता है। Definitely. या
Okay, so finally now waiting for the merit. Very soon it will be coming and you'll be joining the academy, right? Yes, So ma'am. how is the excitement and the माहौल at your home कि finally हमारा लड़का तो जा रहा है अभी Air Force Academy? So, ma'am, Mahal is very good. Finally, Papa is also getting retired in a year or Okay. two. So, all my elder brother, elder sister, they're doing very good in their lives. And then it was my turn कि हाँ भाई अब पापा को टेंशन से family को everybody is very happy, very jolly at home. And then that is what matters at the end of the day. They have done a lot for you, and then you do need to do something to make them proud and then see that smile on their face. So at the end of the day, that is what matters for me. So that's So, self-satisfaction and their satisfaction. okay. So what are two things you want to do before joining the academy, or like the bucket list type thing? I am exploring Delhi these days. Like I have a lot, but then I just take my motorbike and then I am just wandering all around these days, clubbing and all. And then secondly, my NDA friends will be coming this coming June. May 30 को POP है उनकी, they'll be coming, and then we are planning to go on a bike ride to Leh. So Great. yeah, so these are my bucket list. थोड़ा बहुत यही बाकी Okay. Yeah, enjoyment. very inspiring and motivating story, whatever you have told. Like, I think many people who are not even planning will now be going to attempt the returns or the SSBs, whatever. So thank you so much for sharing such good experience and so beautifully. Okay, finally, any tip, like final compilation of whatever you told in a sentence or so for the aspirants, and what will be your final words for the SSB crack exams? How was it helpful in your preparation? The final thing I would like to say to all the aspirants that stay motivated. ठीक है? Don't let negative things, negative thoughts, negative people to be around you. Always stay with those people who motivate you and give you positive vibes. ठीक है? All my friends or my friend circle, they all are so they're all so into motivating me at all times कि हाँ भाई मैं खुद सोचता हूँ कि हाँ भाई मेरे लिए तो यार they have so much expectations with me. ठीक है? तो every time surround yourself with positive energy and just keep working hard. ठीक है? किसी की SSB है, सब किसी का रिटर्न्स है, तो अपना अच्छे से हर चीज में टाइम देके अपना हर चीज को टाइम दो. एंड देन आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि कुछ लोग सोचते हैं कि यार अभी रिटर्न आ रहा है, SSB आ रही है, इंस्टाग्राम बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो. आई डोंट बिलीव इन दिस. ठीक है? आई डोंट फाइंड दिस वेरी लॉजिकल कि भाई अब मैं आई एम दिस काइंड ऑफ गाय कि यार मैं SSB जा रहा हूँ, अगर कल तो आज मैं पूरी मस्ती करके जाऊंगा. ठीक है, होना होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन मेरे को बाद में रिग्रेट तो नहीं रहेगा ना कि यार वो 1 महीना पहले से मैंने अपनी मस्ती भी सारी बंद कर दी और फिर अब मैं रिकमेंड भी नहीं हुआ. मैं Exactly. ये सोचता हूँ अपना पूरी मस्ती, पूरा अपना टाइम स्पेंड अच्छे से, एंजॉय योर लाइफ, वन लाइफ, एंजॉय योर लाइफ, एंड देन जो होना होगा वो होगा. प्रिपरेशन बाकी करते रहो एंड देन स्टे मोटिवेटेड, मेहनत करते रहो, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट डूइंग फॉर योर पेरेंट्स. ठीक है? दे हैव डन अ लॉट फॉर यू एंड देन इट्स टाइम फॉर यू टू रीपे देम बैक. And then SSB crack has really helped me a lot, really helped me a lot in my returns, starting from my NDA journey when I was not able to clear my returns in the first attempt. From there to clearing returns 2 times for NDA and then FCAT also, it has helped me tremendously. So everything is so systematically given, and then well qualified staff, and then the practice sets are there. You can analyze your these things, your performance, and you can see कि हाँ भाई अब मेरा क्या standard चल रहा है अभी. The person in the same test has also appeared, has also taken this test, and he scored so well. Why I couldn't score? तो ये आप analyze खुद करते रहते हो, and then आपको पता लगता है. तो SSB crack has all in all helped me tremendously in my preparation. It was very nice hearing you speaking, Akhilesh. Thank you so much for coming to our platform and sharing your experience. And I hope you will be joining the academy very soon. Wishing all the very best and all the luck to you, and have a great journey ahead. Thank you so much again. Thank you so much, ma'am. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.